Welcome back to another lecture, linear differential equations. Linear differential equations are those in which the dependent variable and its derivatives occur only in the first degree and are not multiplied together. This is most important to note, first degree. यहाँ पे order की बात नहीं कर रहे हैं. Order may be 1, 2, 3, 4 up to so on. जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर इज डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन इंटू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस पी एन वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स. इसका मतलब है nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एक कम हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर n माइनस वनथ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अप टू सोन. लास्ट में आपके पास y रह जाता है और राइट हैंड साइड में कैपिटल x है. दिस इज ए फंक्शन ऑफ x वेयर p1 p2 अप टू सोन pn दीज आर कोफिशिएंट्स एंड कैपिटल x आर फंक्शंस ऑफ x ओनली. ये फंक्शंस ऑफ x रहेंगे इफ p1 p2 अप टू सोन p1 p2 जो भी जितने भी ऑप्शंस है आर रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट्स k1 k2 अप टू सोन kn. अगर फंक्शंस ऑफ x नहीं है, दीज आर कांस्टेंट्स, देन द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स आर ऑफ द फॉर्म dny अपॉन dxn प्लस k1 dn माइनस वन y अपॉन dxn माइनस वन प्लस k2 dn minus 2 y upon dxn minus 2 plus up to so on plus kn y equal to capital X. Next is operator. Operator is d, differential operator d by dx. अगर हम फिर से d स्क्वायर लें, d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर d cube equal to d3 upon dx cube so on dn equal to dn upon dxn. d is called differential operator. Itself this is meaningless. अगर हम किसी फंक्शंस के साथ इसको ऑपरेट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन करेगा. Now we have to focus differential equation with constant coefficients. This is most important. हम इस पे फोकस करेंगे. Most of the questions are related to this. It can be written as by using differential operator. तो ये यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? फर्स्ट आपके पास we can write dn upon dxn means capital D raised to power n into y plus k1 capital D raised to power n minus 1 plus k2 times capital D raised to power n minus 2 plus up to so on plus kny equal to x. dn y plus dn minus 1 y plus dn minus 2 y plus up to so on plus यहाँ पे ऑप्शंस भी है k1 k2 लास्ट में kn इंटू y. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज x. अब हम यहाँ से y भी कॉमन है, y कैन टेक कॉमन dn प्लस k1 dn माइनस वन प्लस k2 dn माइनस टू प्लस अप टू सोन प्लस kn टाइम्स y इक्वल टू x. अब what is this? dn plus k1 dn minus 1 plus k2 dn minus 2 plus up to so on plus kn. It can be written as function of d क्योंकि ये तो कांस्टेंट है. अब d तो वेरी कर रहा है. सबसे पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर d रेज टू पर n है, फिर रिड्यूस होके n माइनस वन हो रहा है, n माइनस टू अप टू सो ऑन n रेज टू n माइनस n मीन्स d रेज टू पर जीरो दैट इज वन हियर. तो एफ डी, इसको हम एफ डी ले सकते हैं. तो दैट इज वी गेट
fd into y equal to x. In short, linear differential equation with constant coefficients can be written as fd into y equal to x, where fd equal to this, or fd is polynomial in D. For example, differential equation of order 3 d2y upon dx cube plus 5 times of d2y upon dx square minus 3 times of dy upon dx plus 5 times y equals to, let us suppose here is e raised to power sin x. This is a differential equation of order 3. अब इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, तो वेयर इट कैन बी रिटन एज डी क्यूब प्लस 5 टाइम्स डी स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स डी प्लस 5, कॉमन आपके पास y है, दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर sin x, वेयर दिस इज fd. fd इज ए पॉलिनोमियल इन d, तो इस टाइप से हम अलग से लिख सकते हैं fd इक्वल टू डी क्यूब प्लस 5d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 5. दिस इज पॉलिनोमियल इन d. दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल. नाउ we handle a case when right hand side equal to 0. अगर right hand side में 0 हो तो what will get? हमारे पास fd into y equals to x, where fd is polynomial in D. This is a linear differential equation with constant coefficients. If right hand side x equal to 0, then what will get? So we get f of d into y equals to 0. There is only one solution. That solution is called complementary function. इसको हम लिख सकते हैं complementary function. This is a solution. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया है, दैट इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन. व्हेन राइट हैंड साइड इक्वल टू 0, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से देखो, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू 0. अब दो प्रोडक्ट टर्म्स 0 हो रही है, y तो 0 नहीं लेंगे क्योंकि y ही 0 हो जाएगा, तो फिर सारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 0 हो जाएगी. तो दिस इम्प्लाइज f times f of d equals to 0. This implies f of d equal to 0. fd equals to 0 means d raised to power n plus k1 dn minus 1 plus up to so on, plus last में kn है. This equals to 0. This is polynomial in D. This is also called a dot e, means auxiliary equation. Auxiliary equations are very simple polynomial equations and can give n roots. अगर n times है यहाँ पे तो n roots देगी, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो 2 roots देगी. तो दिस इज कॉल्ड auxiliary equation. इसको सॉल्व करेंगे. When we solve and find n roots, जब हम इसके n रूट्स फाइंड करेंगे तो उन n रूट्स के ऊपर कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे. उन रूल्स के मुताबिक हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा. दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन गिव्स n रूट्स. अब रूट्स में हमारे को कुछ केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे. लेट अस टेक केस नंबर 1. Roots are all distinct, means कोई भी रूट्स आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, they are not equal. तो let us take m1
कॉमा m2 कॉमा m3 कॉमा अप टू सोन कितने रूट्स देगी? n रूट्स, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर इसका n है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जिसका ऑर्डर n है तो वो n रूट्स देगा, जिसका ऑर्डर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक बनेगी, गिव्स 2 रूट्स ओनली अप टू सोन। इस टाइप से हम रूट्स फाइंड करते हैं। लेट अस कंसिडर देयर आर n roots, they are all distinct. By solving the auxiliary equation, so therefore the solution which is complementary function, the formula is constant c1 e raised to power m1x plus c2 times e raised to power m2x plus c3 times e raised to power m3x plus up to so on cn raised to power e raised to power mn x. This is the formula. This is called complementary function. डायरेक्ट सॉल्यूशन निकलेगा। अगर m1 की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, m2 की वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे, अप टू सो ऑन। दीज आर वैल्यूज ऑफ रूट्स, और कॉन्स्टेंट्स भी बोल सकते हैं अगर आपके पास इसमें इस टाइप से हमारे पास कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है। अब केस नंबर 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 2, let us consider any two roots are equal. Let m1 equal to m2, बाकी डिस्टिंक्ट है, m3 अप टू सोन ऑफ mn, ये दो रूट्स आपके पास इक्वल है। तो देयरफॉर द कंप्लीमेंट्री फंक्शन अगेन y कंप्लीमेंट्री फंक्शन विच इज इक्वल टू, अगर इक्वल हो द फॉर्मूला इज c1 प्लस c2 इंटू x e रेज टू पावर m1 इक्वल टू m2, दैट इज m1 लिखो चाहे m2 लिखो, वट एवर, m1x प्लस c1 c2 c3 आगे आएगा, e रेज टू पावर m3x प्लस अप टू सोन cn e रेज टू पावर mnx, बाकी एज इट इज रहेगा। अगर 3 रूट्स इक्वल हो तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, यहाँ पे पोलिनोमियल बननी शुरू हो जाएगी। तो इस टाइप से हम इक्वल रूट्स के लिए भी कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। केस नंबर 3, इफ एनी टू रूट्स आर इमेजिनरी, कहने का मतलब है लेट अस टेक वन रूट इज, लेट अस टेक m1 इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अनदर रूट्स m2, इसका कंजुगेट that is alpha minus iota beta रहेगा। complex conjugate occurs only in pairs, we know very well। बाकी रूट सारे एज इट इज है, डिस्टिंक्ट है, m3 और रियल है, m3 m4 अप टू सोन ऑफ mn। what is the complementary function? therefore y complementary function which is equal to, अगर इमेजिनरी रूट है दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर अल्फा x ब्रैकेट स्टार्ट c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, ये आपके पास यहाँ पे रहेगा, प्लस अदर रूट c3 के साथ वैसे ही रहेगा, यहाँ से आगे एज इट इज रहेगा, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। दैट इज द कंप्लीमेंट्री फंक्शन फॉर इमेजिनरी रूट्स। केस नंबर 4, इफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, अगर इक्वल हो दैट इज m1 आपके पास लेट अस टेक m2 के बराबर है, m3 इक्वल्स टू m4। इस टाइप से अगर रूट्स है दे आर इमेजिनरी ऑल्सो बट अदर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, m6 अप टू सोन m रेज टू mn, तो देन द कंप्लीमेंट्री फंक्शन cf that is equal to e raised to power alpha x times c1x plus c2, इस टाइप से करेंगे, cos बीटा x plus c1 c2 c3 plus c4x sin बीटा x, ये आ गया, c1 c2 c3 c4 c5 के लिए e रेज टू पावर m5x c5 प्लस
C6 के लिए भी ऐसे आ जाएगा, C6 e raised to power m6x plus up to so on plus Cn e raised to power mnx. दिस इज कंप्लीमेंट्री फंक्शन। यहाँ पे वैसे आएगा जैसे हमने केस 2 स्टडी किया था, एज इट इज C1x प्लस C2, टू रूट्स आपके पास इक्वल है। तो देयर फॉर वी हैव स्टडीड केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, d square x upon dt square plus 5dx upon dt plus 6x equal to 0 given initial condition x of 0 equal to 0, dx upon dt at 0 equal to 15। सबसे पहले चेक करेंगे what is order। order equal to 2 और degree equal to 1। What is the type of? This is linear differential equation with constant coefficients. These are the coefficients. These are constants. So we can write constant coefficients. Equation is f of d into y equal to x. ये हमारे पास इक्वेशंस थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अब इसको जब इससे मैच करें तो राइट हैंड साइड दैट इज x, दिस इज नॉन होमोजेनियस टर्म ऑल्सो, x इक्वल्स टू 0 हेयर, दिस इज 0। f ऑफ d इंटू वाई, यहाँ पे d आपके पास था d अपॉन dx, दिस इज ऑपरेटर, बट हेयर इज d अपॉन dt, दिस इज रिप्लेस्ड बाय d अपॉन dt, क्योंकि यहाँ पर t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी नोट करना पड़ेगा। d अपॉन dt इक्वल टू कैपिटल D। हेयर इज y, बट इन प्लेस ऑफ y वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल x। तो देयरफॉर दिस बिकम्स f ऑफ d इंटू x दैट इज इक्वल्स टू 0, वेयर एफ डी इक्वल टू, यहां से निकाल सकते हैं डायरेक्टली, d स्क्वेयर प्लस 5 टाइम्स d प्लस 6, दिस इज एफ डी, दिस इज पॉलिनोमियल इन d। अब हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इस केस में कंप्लीमेंट्री फंक्शन ही सॉल्यूशन है। राइट हैंड साइड में जब 0 होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं आएगा, तो देयरफॉर वन सॉल्यूशन दैट इज कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शंस के लिए सॉल्व करेंगे, दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 करना पड़ेगा। जब इसको 0 करेंगे दिस इंप्लाइज d स्क्वेयर प्लस 5 टाइम्स d प्लस 6 इक्वल्स टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजीली सॉल्व हो जाएगी। 6d स्क्वेयर दैट इज 3 and 2 का फैक्टर बन जाएगा, d स्क्वेयर प्लस 3d प्लस 2d plus 6 equals to 0, d is taken common, d plus 3 plus 2 times d plus 3 equals to 0, फिर से कॉमन है ये, d plus 2 d plus 3, दिस implies d की क्या वैल्यू निकली, 2 minus 2 minus 3। यहां से रूट्स आ गया हमारे पास, लेट m1 equal to -2, m2 another root -3। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, m स्क्वेयर प्लस 5 टाइम्स m प्लस 6, इट कैन बी चेंज्ड इनटू दिस फॉर्म। इस फॉर्म को हम इसमें भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें कन्वर्ट नहीं करना है तो d की फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और d से ही सॉल्व करेंगे तो फाइनली हम m1 m2 को इस टाइप से लिख लेंगे। दीज आर द टू रूट्स। अब ये कौन सा केस हैंडल हुआ, केस नंबर 1। यहाँ पे देख सकते हैं हम केस नंबर 1 में था रूट्स आर ऑल डिस्टिंक्ट। अगर डिस्टिंक्ट हो, दो ही रूट्स है, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला है c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x। यहाँ तक ही आएगा, क्योंकि हमारे पास दो रूट्स है तो आगे नहीं जाएंगे। अगर 3 रूट्स होते तो फिर आगे जाते। दैट इज कंप्लीमेंट्री फंक्शन y, यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू c1
e raised to power m1x, m1 is -2, plus c2 e raised to power m2x -3x. दिस इज आंसर। इस टाइप से हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये निकले हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। लेक्चर नंबर 1 में हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को रिमूव किया था और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड की थी। अब ये इस प्रोसेस में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी है और हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। अगर हम इसको चेक करना चाहें, इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को रिमूव करना चाहें, तो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। यू कैन चेक। अब ये आपके पास कंप्लीमेंट्री फंक्शंस का सॉल्यूशन है, लेकिन गिवन आपके पास x एट 0 इक्वल टू 0 भी गिवन है। यहाँ पे y लिया, y लेने की जरूरत नहीं है, y इज रिप्लेस्ड बाय x, जैसा कि हमने पहले भी बोला है। यहाँ पर y इज रिप्लेस्ड बाय x, दैट इज स्मॉल x। तो x इक्वल्स टू दिस। तो x एट 0 आपके पास 0 है, तो x एट 0 इक्वल टू c1 e रेस्ट पर 0, दैट इज 1, c1 प्लस c2 आ गया, इक्वल टू 0 भी है राइट हैंड साइड में, c1 इक्वल टू माइनस c2 आ गया। सेकेंड केस में आपके पास dx बाई dt यहाँ से निकल जाएगा एक बारी डिफ्रेंशिएशन करने से। तो x डैश एट t भी कर सकते हैं इसको। तो दिस इज इक्वल्स टू -2 c1 e रेज टू पावर -2x -3 टाइम्स c2 e रेज टू पावर -3x। तो यहाँ से t को 0 रखते हैं, x डैश एट 0 दैट इज इक्वल्स टू -2 c1 e रेज पर 0, फिर से 1 हो जाएगा, -3 c2। राइट हैंड साइड में आपके पास 15 है गिवन है। तो यहाँ से और यहाँ से कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, देन वी कैन फाइंड द रियल सॉल्यूशन x एट t, जो आपके पास c1 c2 को रिप्लेस करके यहाँ से सॉल्व करके मिल जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास मिलने वाला है, c1 तो हमारे पास -c2 है, और बाकी एक यहाँ पे भी टर्म्स आ रही है, -2 c1 दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 3c2, 15 प्लस c, तो c1 की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, दैट इज -c2, दैट बिकम्स प्लस 2c2 इक्वल टू 15 प्लस 3c2, यहाँ से निकाल देते हैं 3 यहाँ से अगर इस लेफ्ट हैंड साइड 2 - 3 -c2, तो c2 की वैल्यू -15 आ जाती है। तो सिमिलरली c1 की वैल्यू अपोजिट आ जाएगी, दैट इज 15। ये c1 c2 की वैल्यू मिल जाती है, और c1 c2 की वैल्यू जैसे यहाँ रखते हैं, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर मिलता है। तो आगे करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2, d3y अपॉन dx³ माइनस 3d² अपॉन dx² प्लस 3 टाइम्स dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू 0। तो सिंपल है, दैट इज f ऑफ d इंटू y इक्वल्स टू 0, वेयर fd इक्वल टू d³ माइनस 3d प्लस 3d माइनस 1, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 1, वेयर d इक्वल टू d बाई dx, ये भी लिखना पड़ेगा जैसे पिछले क्वेश्चंस में d बाई dt था। दिस इज पॉलिनोमियल इन d। ऑक्सिलरी इक्वेशंस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशंस m³ माइनस 3m² प्लस 3m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे इजी प्रोसेस है हिट एंड ट्रायल मेथड। लेट m इक्वल्स टू 1 बी द सॉल्यूशन फॉर दिस। तो देयरफॉर 1³ that is 1 minus 3 1 square that is 1 plus 3 into 1 3 minus 1, this becomes 0. So therefore m equal to 1 is a solution for this cubic equation. तो therefore other इस टाइप से निकालेंगे हम m minus 1, इसको हम डिवाइड कर लेंगे m³ minus
3m² प्लस 3m-1 और यहाँ पर m² से इसको डिवाइड करेंगे m², m³ माइनस m² आ गया, that is minus plus, that is cancel out, we will get minus plus, that is minus 2m² plus 3m आ जाएगा यहाँ पर, minus 2m minus 2m² माइनस माइनस प्लस, that is 2m, फिर से इसको माइनस किया, that becomes plus minus, you cancel, we will get 3 minus 2, that is 1m minus 1, फिर प्लस 1 यहाँ पे किया, m minus 1, remainder 0. तो therefore this is equal to m minus 1 times m² minus 2m plus 1. ये क्वाड्रेटिक बन गई. It can be easily solved. तो therefore इसको सॉल्व कर लेते हैं. m² minus 2m plus 1, that is equal to m² minus m plus 1. अगर प्रोडक्ट करें, that is m². m into m minus 1 is taken common, m minus 1. m minus 1 square, m minus 1, that is equals to m minus 1 already है, यहाँ पे m minus square है, that is m minus 1 cube. तो therefore roots are m1 equal to 1, m2 equal to 1, m3 equal to 1. सारे रूट्स इक्वल है, और जब सारे रूट्स इक्वल हो तो इक्वलिटी का केस हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं. केस नंबर 2, अगर 2 रूट्स इक्वल है तो c1 प्लस c2x आएगा. अगर 3 रूट्स इक्वल है, c1 प्लस c2x प्लस c3x² टाइम्स e रेज टू पावर जो रूट्स है यहाँ पे m1 या दैट इज कॉमन रूट्स है, दैट इज mx. तो यहाँ से सीधा यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा. यहाँ पर y complementary function which is equal to c1 plus c2x plus c3x², ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना यहाँ पे, टाइम्स e रेज टू पावर 1x, दैट इज x. रिक्वायर्ड आंसर अगर चेक करना हो तो डिफरेंशिएशन करके फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम c1, c2, c3 को रिमूव कर सकते हैं हम, तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ से हम बैक प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं. तो यहाँ से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से यहाँ तो पहुँच गए बाय रूल, लेकिन यहाँ से जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो वही मेथड लगना है, बाय रिमूविंग कांस्टेंट्स एंड वी फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन. Hence the lecture. Thank you so much.